गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 15 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਟਸ ਵੈਲ ਨੋਨ ਟੂ ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 7th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम बटा कुल परिणाम ਇਹ ਤੁਸੀਂ बहुत टाइम तो करते आ रहे हैं। मे भी पता नहीं कितनी बार ये चीज एक एक नंबर वाले क्वेश्चन चाहिए या लॉन्ग आंसर चाहिए तो तुसी हमेशा इन्हों कीता है और अच्छे स्कोर भी लेने और करैक्ट क्वेश्चंस कीते ने। हुण ना जिवें आपां वड्डी क्लास च हो गए हुए हैं, ठीक है, तो असी सिर्फ फार्मूले ते तां नहीं ना जोर लावांगे, असी उहदे रिगार्डिंग कुछ नवां भी सिखांगे ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਟ ਇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। तो ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ टू these some terms like likelihood, है ना, likely, most likely, probably, doubt, chances। तो सपोज करो मैं एक लाइन बोल रहे हैं कि इट्स लाइकली टू रेन टूडे। क्यों? मैं जो सवेरे उठे मैं उठ के अपना फोन चेक किया तो उत्थे वैदर फोरकास्ट दे विच सीगा कि अज रेनफॉल हो सकता है ना, तो मेरे दिमाग च आ गया रेनफॉल हो सकता है, बट शामी में देखा नहीं होया। तो मतलब की है, रेनफॉल होन ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਟਨਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਲਾਈਕਲੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ, ਡਾਊਟ, ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ, ठीक है। सपोज 0 असाइन करती, 1 असाइन करती, 1/2 असाइन कर देती है ना। तो ये जो वैल्यू असाइन कर देवांगे ना ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੂਗੀ ਦ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਐਂਡ ਲਾਈਕਲੀਹੁੱਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ क्वेश्चंस ते आने हैं वापस 15.1 करते हैं। मेरे को कुछ अल्फाबेट्स पे ने, ठीक है। तो हुण मैं जे तुहानू पुछां कि मैनू जस्ट दसो मैनू कि आंदी प्रोबेबिलिटी की है, तो तुसी जदों भी क्वेश्चन दे विच तुहानू कोई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन दे विच तुहानू पुछदा है इदां दी कोई चीज़, तां तुसी की करना हुंदा है, हमेशा नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कढने हुंदे आ। टोटल आउटकम्स मतलब तुहानू जिहड़ी चीज़ प्रोवाइड कीती है, ठीक है। हुण जिद्दां मैं इत्थे तुहानू प्रोवाइड कीते अल्फाबेट्स, काउंट ऑल अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट काउंट करो किन्ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई, 8 हो गई। जिन्नी चीज प्रोवाइड की होगी दैट विल बी योर टोटल आउटकम्स। उस तो बाद गल आंदी भी है, क्वेश्चन पुछदा पिया कि दसो जी जेकर तुहाडे कोले 8 अल्फाबेट्स पए ने, उन्हां दे विचों के तुसीं इदां हत्थ विच बॉक्स विच पाया ते उहदे विचों कई बार निकले, ठीक है। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 डिवाइडेड बाय की किन्ने सीगे 8, ठीक है। और जो तुसी उन्हों की करिया लोएस्ट फॉर्म दे विच आए तुहाडे कोले 1/2 आ गया। तो ऐदां दे ही सारे न्यूमैरिकल्स आणगे। इस तो इलावा एक होर चीज़ नूं भी बहुत अपने माइंड दे विच रखियो, जदों भी असीं किसी ईवेंट की गल करदे हां ना, उहदी प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर ईवेंट इज सर्टन होगा प्लस प्रोबेबिलिटी that event is not certain, will not occur, probability of event that will occur plus probability of event that will not occur। मैंने e बार दे नाल लिखा होया, this is always equal to 1। rather मैं कमां इन्हां दोनों दा सम हमेशा किहदे इक्वल होगा, 1 दे इक्वल होगा। और जो तुहाडे प्रोबेबिलिटी दी जो न्यूमैरिकल वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो न्यूमैरिकल वैल्यू हमेशा किहदे विच लाई करदी है, ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 0 ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ।
ਸੋ ਆਪਾਂ 15.1 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ probability of event plus probability of event not E means event जो अकर करूगा event जो नहीं अकर करूगा उन्होंने ना sum के लिए equal होगा। हुने ऐसे कीता sum is always equal to 1। The probability of event that cannot happen is ਜਿਹੜਾ event नहीं हो सकता। तुसी सारे जाने अपने घरे लूडो खेडते हैं है ना। लूडो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਡਾਈ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਹੀ 6 ਉੱਥੇ 1 to 6 ਤੱਕ ਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ 8 ਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਟ ਕੈਨੋਟ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0, ਰਾਈਟ। 8 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? 0। ਸੱਚ ਐਨ ਇਵੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਮੈਮ, 8 ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो इवेंट भी की हो गया? इवेंट हो गया इम्पॉसिबल। ठीक, तो अगे आओ थर्ड दे विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन। हुण फिर डाइस दे नाल रिलेट कर लैंदे आ। तुसीं अपना डाइस नूं सुट्टिया लूडो खेडदे खेडदे, ठीक है, और तुहाडे कोले 3 आ गया, तो 3 ऑब्वियसली 3 आ सकता है क्योंकि डाइस दे विच तुहाडे कोले 3 है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट that is certain to happen is कितनी होंगी है? 1। देखो या 0 होगी या 1 होगी या इन बिटवीन होगी ना। 0 तो छोटी होगी ना 1 तो बड़ी होगी। Such an event is called as, ए वाला इवेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ श्योर इवेंट भी कह सकते हैं, ਇਹਨੂੰ certain इवेंट भी कह सकते हैं कि हाँ जी निश्चित है, होना ही होना है, जरूरी है, होगा ही होगा। तो की कमा ਇਹਨੂੰ certain कहना, ठीक है। नेक्स्ट देखो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मतलब तुसी की कर रहे हो, जिन्ने भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ 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 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆंसर ਆਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆंसर्स ਦਾ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू। हुणे हुणे कीता कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट दी हमेशा की हुंदी है? वड्डी हुंदी है एंड इक्वल टू हुंदी है किते 0 दे, तो इत्थे आ गया 0। एंड लेस देन छोटी हुंदी है, बराबर हुंदी है किते लेस देन और इक्वल टू 1। सो बहुत ईजी है, बहुत ध्यान दे नाल करियो और बहुत अच्छा अच्छा करियो और समझ के करियो, ठीक है। अपने दिमाग दे नाल होर एग्जाम्पल्स बनाओ, उन्हां दे नाल को रिलेट कर करके करियो। उस तो बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो सैकेंड क्वेश्चन दे विच मेरे को कुछ स्टेटमेंट्स है, देखना उन्होंने स्टेटमेंट्स नूं असीं की करना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। मतलब तुहानूं कुछ इवेंट्स दिते होणगे, कुछ गल्लां दित्तियां होणगियां, कुछ स्टेटमेंट्स दित्तियां होणगियां, उहदा आंसर हाँ भी है ना भी है, ठीक है। हाँ या ना, यस या नो दी मतलब जिहड़ी उन्होंने प्रपोर्शन है दैट शुड बी इक्वली लाइकली। ठीक, चलो देखते हैं। कहता पे अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। कोई ड्राइवर है कार स्टार्ट करने वास्ते एक अटेम्प्ट करता, द कार स्टार्ट और डजंट स्टार्ट। मतलब तुहानूं 2 चीज़ां देतियां, कार फटाफट स्टार्ट हो जाती है ते कार स्टार्ट नहीं हुंदी। कि ये जिहड़ियां दोनों चीज़ां है, ठीक है, जिहड़ियां दोनों आउटकम्स है, ठीक, कि इन्हों असी इक्वली लाइकली आउटकम्स कह सकते हैं। देखो जो बंदा हुन कार स्टार्ट कर रहा है ना, तो कि इदा भी हो सकता है कि हुन उन्हें कोई असी वारी थोड़ा दिती हुई कि तेनू तू 10 वारी च करनी है ना। मे बी उन्हें फर्स्ट टाइम की करया अपनी चाबी नू पाया एंड उन्होंने टर्न किया तो कार स्टार्ट हो गई, है ना। ये भी हो सकता है। तो मे बी वो सवेर तो लैके शाम तक लगा रहे, उसकी कार ही ना स्टार्ट हो, मे बी उस कार दे विच कोई फॉल्ट हो जिहदे कार स्टार्ट ही ना हुंदी होवे। तो ये वाली जिहड़ी एग्जाम्पल है या ये वाली जिहड़ी स्टेटमेंट है, इहदे विच जिहड़े इहदे 2 आउटकम्स है उन्हां दी जिहड़ी प्रपोर्शन कि उन्हां दी इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि उन्हां दोनों नूं असीं इक्वली लाइकली आउटकम्स कहिए, ये मतलब नहीं जरूरी नहीं है।
सो पता लग गया ना तुहानू, समझ लग गई किस तरह ये क्वेश्चन करना है। हुण उस तो बाद एक होर देखते हैं, बाकी ਉਹਦੇ पार्ट्स तुसीं अपने आप करियो। A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. तो इस चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਬੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਹੀ ਲੇਮੈਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਹੈਨਾ। ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੇਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੈਨਾ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਆਊਟਕਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੀ ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੌਜਿਕ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, तो ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। तो कहना पाया कि ये टॉस करना, ठीक है, मतलब why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? कि इनू ही क्यों मनते हैं, क्यों टॉसिंग ही करते हैं, डाइस ना नहीं खेड लेंदे, टॉसिंग ही क्यों करते हैं? देखो ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫੇਸ ਆ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਟੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਆਊਗਾ ਕਿ ਟੇਲ ਆਊਗਾ, तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਆਊਟਕਮਸ, ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਛਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਡ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਡ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਸਿੰਗ ਆ ਕੋਇਨ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। चलो हुण उस तो बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे विच तुहाडे कोले की दित्ता होया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। मतलब हुण तुहाडे दिमाग दे विच एक चीज आनी चाहिए, वो कहंदा पिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। तुहानू एकदम दिमाग च आना चाहिए, इहदियां वैल्यूज दो हो सकदियां ने, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है ना। अच्छा जी, उस तो बाद ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 2/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 0 ਕੁਛ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ -1.5। ਚਲੋ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, 0 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, सो ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, बी ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ठीक जी। उस तो बाद 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ if probability of event is 0.05 what is the probability of not E। मतलब इवेंट हो रहा है, इवेंट नहीं हो रहा, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ इवेंट हो रहा है, नहीं ਦਿੱਤਾ होया, probability E नॉट फाइंड करो। we know कि probability event plus probability जिद्दां उन्होंने ने लिखिया not E, its sum is always equal to 1, just put the value 0.05 plus P of not E is equal to 1, तो P not E कितना आ गया 1 माइनस
तो जो तुसी इनू माइनस किया तुहाडे कोले आ जाऊगा 1.00 माइनस 0.05 ध्यान नाल माइनस करना काली नहीं करनी तो कितना आ गया तुहाडे कोले 0.95 तो देखो आंसर कितना है 1 तो छोटा ही है ना। हुण देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 6 दे विच है कि कोई बैग है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली ठीक है। सपोज एक बैग है इहदे विच किन्नियां कैंडीज पईयां ने किहड़ियां कैंडीज पईयां ने लेमन फ्लेवर वालियां पईयां ने तुसीं कैंडी इनू खोलोगे कैंडी कड्डोगे मुंह च पाओगे किहड़ा टेस्ट आऊगा लेमन दा नींबू वर्गा स्वाद आऊगा। तो मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी नूं भुख लगी सी मालिनी ने की कीता बैग खोलिया कुछ नहीं रैपर ते नाम पढ़िया फटाफट टॉफी नूं की कर लिया खा लिया। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट हुण क्वेश्चन स्टार्ट हो गया प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो अगर ये बैग है बैग दे विच सारी दियां सारियां लेमन कैंडीज पईयां ने ते उन्हें बैग खोलिया बिना खोले खा ली कि उन्होंने कभी ऑरेंज का टेस्ट आऊगा उस कैंडी दे विचों जद जेकर विच सारियां लेमन कैंडीज पईयां होणगियां नहीं आऊगा ना। तो की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी कि तो ओदे कोले की आ जाए ऑरेंज फ्लेवर आ जाए तो ओदी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सीधा आंसर 0 क्यों विच टॉफीज ही नहीं है ऑरेंज फ्लेवर वालियां ठीक। अच्छा लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आए सेकंड पार्ट दे विच पूछ रहा तुहाडे कोले कि तो ओदे कोले की आए लेमन फ्लेवर वाली कैंडी आए तो विच सपोज कर लो 100 कैंडीज पईयां ने 100 ही लेमन फ्लेवर दी हैं तो उन्हें एक कैंडी बाहर कड्डी खा ली। तो मैं तुहानूं जेकर पूछा कि प्रोबेबल आउटकम्स की होणगियां लेमन कैंडी दियां तुसीं कहोगे 100 होंगियां है ना। मैं तुहानूं कहूंगी टोटल आउटकम्स की होंगियां तुसीं कहोगे वो भी 100 होंगियां ते प्रोबेबिलिटी के तुहाडे कोले की आवे लेमन फ्लेवर ही आवे वो कितनी होगी 100/100 कट के कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा ठीक है ना। हुण ये नहीं सोचना कि 100 तो विच किते दिता नहीं मैं उदा सपोज कर लिया सपोज कर लो तुसीं 10 सपोज कर लो हुण जे 10 लेमन वालियां पईयां उन्हां चों एक कट के खाओगे है ना तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होए वो भी 10 होए क्योंकि जेड़ी विच कैंडीज पईयां ने उन्हां दी ही वो गल कर रहा। तो वेरी इजी बहुत सौखा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ते। तो 7th क्वेश्चन दे विच है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स ठीक है 3 बच्चों का एक ग्रुप है जिहदे विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे ठीक है। तो कहता पाया कि 3 बच्चों का ग्रुप है 2 बच्चे आ जिन्हां दा बर्थडे सेम ना होवे ओदी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992 ते ओही 2 बच्चे के उन्हां दा की होवे बर्थडे सेम डे होवे इहदी प्रोबेबिलिटी पता करो। तो जेकर तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखोगे तुहानूं ओ PE ते P नॉट E इहनूं डिस्कस करन नूं कहंदा पिया। हुण प्रोबेबिलिटी के उन्हां दा बर्थडे सेम डे नहीं आंदा पिया कितनी है 0.992 है। तुसी एनू कुछ नहीं देखना कि 2 स्टूडेंट है कि 3 स्टूडेंट है तुसी क्वेश्चन पढ़ के समझना कि वो पुछदा की पिया वो कहंदा पिया कि एक इवेंट ना होवे ओदी प्रोबेबिलिटी है 0.992 ते ओही इवेंट हो जाए ओदी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो असीं मान लैंदे हैं लेट द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे इज PE which is not given which we need to find and we know what PE plus P what not E this is equal to 1 now PE just put the value of P not E which is 0.992 is equal to 1 so probability that 2 students have same birthday is equal to 1 minus 0.992 तो 1 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1.000 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ minus 0.992 तो जो तुसी इनू माइनस करोगे आंसर आऊगा 0.008 so this is the probability that 2 students they have same birthday ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 8 ते क्वेश्चन नंबर 8 दे विच तुहाडे कोले कह रहा है you have a one bag which contain 3 red balls ठीक है 5 black balls ठीक है a ball is drawn at random अचानक एक बॉल तुसी की करदे हो बाहर कढदे हो फ्रॉम द बैग वट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट
इदां दे क्वेश्चंस दे विच जिन्ने भी बॉल मार्बल वाले क्वेश्चन आएंगे सब तो पहला तुसी की लिखोगे डाटा नोट कर लोगे ठीक है। तो किनिया रेड बॉल्स है तो असीं लिख लैंदे हैं रेड बॉल्स इन्हां दा नंबर कितना है साडे कोले दिस इज इक्वल टू 3। उस तो बाद तुसी लिखोगे ब्लैक बॉल्स जिहड़ियां ब्लैक बॉल्स है वो किनिया है तुहाडे कोले 5 राइट होर तां नहीं कोई नहीं। उस तो बाद तुसी लिखोगे टोटल बॉल्स हमेशा ठीक है टोटल बॉल्स किनिया आ गई तुहाडे कोले 3 + 5 उत्ते तुसी कलर नू कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी जस्ट नंबर्स दा टोटल करना 8। नाउ योर टोटल बॉल्स विल बी योर टोटल आउटकम्स सो देयरफॉर टोटल आउटकम्स वो किनिया आ गई टोटल आउटकम्स आ गई साडे कोले किनिया 8 राइट। हुण फर्दर की कहंदा पिया हुण क्वेश्चंस ते आ जाओ हुण कहंदा पिया कि प्रोबेबिलिटी जो तुसी बैग दे विचों रैंडमली अखा मीट के एक बॉल चक ली वो बॉल की होवे रेड होवे ओके असी की करते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड देख लेने हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स केदे लई आउटकम्स फॉर रेड बॉल्स किनी है देखो किनी है टोटल काउंट करो किनी है रेड बॉल्स किनी है 3 ठीक। So probability that you will get red ball when it is drawn at random it will be 3/8 जिन्हें ज्यादा सोना करके लिखना हो पहला फॉर्मूला लिखे that probability is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes then write probability of getting red balls equal to 3/8 ठीक है। ख्याल रखना जेड़ी चीज पूछी है रेड बॉल्स पूछी है जस्ट चेक करो रेड बॉल्स कितनी बारी आ रही हैं दैट विल बी द फेवरेबल आउटकम्स। उस तो बाद ये हो गया दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है नॉट रेड ओके मान लेने नॉट रेड रेड नहीं है रेड नु भूल जाओ रेड है नहीं बाकी कौन बचदा पिया हुण उन्हें डायरेक्टली नहीं किया ब्लैक उहदे कहने दा मतलब यही है ना तो रेड छड़ दो रेड किनियां ने 3 छड़ दो बाकी किनियां बच गईयां 5 ओके हुण मैं जिद्दां उन्हें मैनू पूछा मैं भी उहदे लिखांगे बॉल्स विच आर नॉट रेड किनियां 5 ठीक। So therefore probability that ball which is drawn at random is not red कितना हो जाएगा 5/8 हमेशा 8 देना डिवाइड करना है ठीक है। क्यों इस क्वेश्चन जैसे 8 देना क्यों डिवाइड करते पे हैं बिकॉज द टोटल आउटकम्स आर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9th okay next question 9th question is just like 8th question I will give you hint only okay the a box contains 5 red marbles so नाल दी नाल तुसी लिखना स्टार्ट करोगे रेड मार्बल्स किन्ने रेड मार्बल्स है तुहाडे कोले 5। नेक्स्ट कौन है किरी कह रहा है यू हैव वाइट मार्बल्स किन्ने है तुहाडे कोले 8 एंड ग्रीन मार्बल्स तुहाडे कोले किन्ने है 4। तो इन्हां सारियां नू की कर लो तुहाडे कोले टोटल आ गईयां बॉल्स या टोटल मार्बल्स आ गए टोटल मार्बल्स कोई भी कलर नु डिस्टिंक्शन नहीं लैनी कलर दी सारा दा टोटल कर लेना तो टोटल मार्बल्स ने देयरफॉर टोटल आउटकम्स किनियां हो गईयां तुहाडे कोले तो अद्धा काम तुहाडा हो गया ठीक है। हुण रह गया क्वेश्चन नु प्रॉपर्ली सॉल्व करना। 1 मार्बल इज टेकन आउट एट रैंडम बॉक्स दे विच सारे पए होए ने तुसी हत्थ मार के एक की करया मार्बल बाहर खिंचया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी रेड हुण कहंदा पे प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल विल बी रेड तो तुसी सिर्फ प्रोबेबल आउटकम्स देखनी है रेड दियां किन्नियां रेड किन्नियां तुहाडे कोले 5 टोटल किन्ने हैं 17 तो 5/17। उस तो बाद कहंदा पे वाइट ठीक है तो वाइट किन्ने हैं चेक करो 8 टोटल किन्ने हैं 17 8/17। उस तो बाद कहंदे पे उस तो बाद कह रहा है तुहाडे कोले एंड दे विच नॉट गिवन नी नॉट ग्रीन तुहाडे कोले ग्रीन ना होवे ठीक है। तो ग्रीन किन्ने सी 4 तो 4 छड़ दो बाकी किन्ने रह गए 5 + 8 किन्ने 13 तो कितना आंसर आऊगा 13/17 13/17। वो कहना पे ग्रीन नहीं होनी चाहिए ठीक है ऐसी ग्रीन नु छड़ दिन्ने कट दिन्ने किनियां बच गईयां बाकी किहड़ियां रह गईयां रेड ते वाइट रह गईयां तो 13/17। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं तो you have a piggy bank that contains 50 paisa coins किन्ने 100 50 1 rupee coins 20 2 rupee coins and 10 5 rupee coins if it is
equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be 50 paisa coin, will not be 5 rupee coin? Okay, एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ coins ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਪੈਸਾ ਦੇ coins ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 100, ਠੀਕ ਆ। 50 ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ 50 ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ coins ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 100 coins ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ coins ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? 50 coins ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 rupees ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? 20 coins ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? 10 coins ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो टोटल किन्ने हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? टोटल किन्ने हो गए? कर लो टोटल ना सारे coins ਦਾ। तो किन्ना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 7 ਤੇ 1 8 180 coins। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 180 coins ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 180। ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 180, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 50 ਪੈਸਾ coin ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मतलब ਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ coin ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 50 ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ coins ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? 100। टोटल किन्ने हैं? 180। So probability that you will get 50 पैसा coin किन्ना होगा? तुसी चेक करना 50 पैसे वाले किन्ने coins है? 100 ने। टोटल किन्ने हैं? 180 है। तो जो तुसी इन्हों डिवाइड करोगे तो 10/18 और जो इन्हों फर्दर सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले आ चुका 5/9 आंसर लोएस्ट फॉर्म दे विच कड्डो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਰੁਪਏ coin नहीं होना चाहिए, not be a 5 ਰੁਪਏ coin। तो की कहंदा बा? 5 ਰੁਪਏ coin ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 100 ਹੈ, 50 ਹੈ, 20 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 170, ਠੀਕ ਹੈ। तो किन्ने हो गए? 170 के 5 ना आवे, बाकी सारे चो जिहड़े मर्जी आ जान। डिवाइडेड बाय 180, 0 ना 0 कैंसल, 17/18 तुहाडे कोल की आ गया आंसर। वेरी सिंपल। 11th question is, Gopi buys a fish from shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from the tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is male fish? गोपी ने अपने घर एक एक्वेरियम रखा होया, ठीक है। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਫਿਸ਼ਿਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਮੇਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਹੈ ਐਂਡ 8 ਫੀਮੇਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਟੋਟਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਟੋਟਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਵਿਲ ਬੀ योर टोटल आउटकम्स। तो ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 plus 8 which is equal to 13, right? ਹੁਣ what is the probability that fish taken out is a male fish? ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? male fish। okay, male fishes ਕਿੰਨੀਆਂ? male fishes ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5। therefore probability that male fish will come out from tank is ਕਿੰਨੀਆਂ? number of favorable outcomes for male fishes divided by total outcomes किन्नियां? 5/13। ये तुहाडे कोले की आ गया ना? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है तुहाडे कोले। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ wheel ਹੈ ਜਿਹੜਾ rotate ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ pointer ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। obviously ਤੁਸੀਂ wheel ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? rotate ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮੂਗਾ, then ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ pointer ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਗਾ? तो ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
जो चांसेस है ना दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वल चांसेस है। तो सब तो पहला ये 4 पार्ट कम्स तो पहला ਅਸੀਂ टोटल आउटकम्स लिख लिए। सो व्हाट विल बी आवर टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स होणगीਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ जिन्ने नंबर टोटल ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 किन्ने हो गए टोटल 8। ठीक है, ये वाला 8 नहीं है, ये टोटल इन्हां नूं करके किन्ने नंबर ने वो वाला 8 है। ठीक है, नाउ कम्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन। वो कहंदा पिया व्हाट इज द probability that this pointer will points towards 8। लोके 8 किन्नी बारी रिपीट हो रहा है इस व्हील ते? तुसी देखोगे ध्यान देना, तुसी कहोगे एक बारी रिपीट हो रहा है ना, तो मैं लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू गेट 8 वाया पॉइंटर किनिया होंगियां? सिर्फ एक बारी, मतलब 8 एक बार आ रहा, 8 बारी नहीं आ रहा, हर थां ते 8 नहीं लिखा होया, 8 सिर्फ एक बारी लिखा होया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी टू गेट 8 किन्नी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू गेट 8 इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल किनिया 8। टोटल किनिया तुहाडे कोले आउटकम्स 8, तो ये तुहाडा फर्स्ट आंसर हो गया। सैकेंड आंसर दे विच सैकेंड किद्दां करना है? एन ऑड नंबर। ओके, check out all odd numbers in between 1 and 8 odd number. First 1 is odd number, 3 is odd number, then 5 is odd number, then 7 is odd number। ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 8 तक सारे odd numbers लिख ले, किन्ने होए टोटल? so number of odd numbers किन्ने हो गए? किन्ने आ गए odd numbers टोटल? 1 2 3 4 है ना। so probability to get an odd number कि तुहाडे कोले एक odd number आवे, what is the probability? this is 4/8। ਉਹਦੇ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड, तो जब तुसीं ਇਹਨੂੰ देखोगे ਤਾਂ कैंसल करोगे तुहाडे कोले आ जाऊगा 1/2। ठीक, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट दे विच तुहाडे कोले हैगा a number greater than 2। तो इस व्हील दे विच सारे वो नंबर्स लिखो which are greater than 2। numbers greater than 2 केड़े केड़े है? 3 4 5 6 7 8 लिख लो सारे। 3 4 5 6 7 एंड 8 कितने हो गए? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी के तुहाडे कोले की आवे? नंबर ग्रेटर दैन 8 आवे, ग्रेटर दैन 2 आवे। कितना हो जाएगा तुहाडे कोले? कितने नंबर सीगे? 6 डिवाइडेड बाय 8, तो इन्हों देखो कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 4 है ना। अच्छा हुण इहदे विच कहंदा पिया अ नंबर लैस दैन 9, तो ये तुसीं खुद करोगे, सारे दे सारे नंबर लैस दैन 9 है, तो प्रोबेबल आउटकम्स हो गए 8/8 कितना आ गया 1। ठीक है, इन्हों खुद सॉल्व करना। 13 क्वेश्चन दे विच साडे कोले ए डाई इज थ्रोन वंस। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number। तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਆ, ਉੱਤੇ 1 to 6 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਗ੍ਰੋਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। तो ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ? टोटल आउटकम्स होणगियां साडे कोले किनियां 6, राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो हुण वो कहंदा पिया अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो असी इदां करदे आ, असी प्राइम नंबर्स मैं ए नूं उड़ा दा तो मैं प्राइम नंबर्स दे की कर दिंदे आ, लिस्ट बना लैंदे आ 1 to 6 तक। हुण 1 ना कंपोजिट है ना प्राइम है, पहला 2, उस तो बाद 3, देन 5, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 दे विचों मेरे को 3 प्राइम नंबर्स आ गए। तो नंबर किन्ने हो गए टोटल? प्राइम नंबर्स किन्ने हो गए साडे कोले? 3। फेवरेबल आउटकम्स फॉर प्राइम नंबर्स किन्नी हो गई? 3। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर कितना आ गया साडे कोले? ये आ गया साडे कोले 3
बाय 6 कैंसल करांगे कितना आ जाऊगा 1/2 आ जाऊगा। ओके सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨੰਬਰ ਲਾਈਂਗ ਬਿਟਵੀਨ 2 and 6। ओके ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ और numbers lying between 2 and 6, between 2 and 6। okay 2 ਤੇ 6 1 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 3 ਨੰਬਰ ਪਏ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? 3 4 5। ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ? 3 4 5। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 3 ਪਏ ਹੋਏ। so probability that you would get number between 2 and 6 कितना आ जाऊगा 3/6 कितना 1/2। उस तो बाद नेक्स्ट है साढ़े कोले ਇਹਦਾ थर्ड पार्ट है ऑड नंबर्स। तो चलो पहला ऑड नंबर्स देख लो ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ऑड नंबर्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 2 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5। तो किन्ने हो गए भी टोटल किन्ने हो गए नंबर 3। so probability that you will get an odd number किन्ना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3/6 which is 1/2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/2 1/2 ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14th। 14th क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ 2-3 क्वेश्चंस ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। 15th ਹੈ ਇੱਕ क्वेश्चन ਹੋਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਡ ਡੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਡ ਡੈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 52 ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਮੰਡ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲੱਬਸ ਐਂਡ ਸਪੇਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡਸ ਹੋਣਗੇ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ਐਨੀ ਹੈ ਫालतू ਹੈ। तो किन्ने टोटल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 13। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 13 ਰੈੱਡ ਕਾਰਡਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 13 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲੈਕ ਵੀ 13 ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲੱਬ ਵੀ 13 ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪੇਡ ਵੀ 13 ਨੇ। तो टोटल किन्ने हो गए 13 × 4 52 ਕਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ। तो टोटल आउटकम्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 52 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਪੇਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ace। A stands for ace, K for king, Q for queen and J for jack। ठीक है हर एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ। तो जेकर डायमंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਾਰਡ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 3 ਹੋਣਗੇ JQK। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? JQK। ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੇਡ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਪੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? तो टोटल किन्ने हो गए? ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 3 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 3 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 3 ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 12 ਹੋ ਗਏ। तो 12 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਕ क्वीन एंड किंग। हुण अगर मैं तुहानू पुछां नंबर कार्ड्स किन्ने किन्ने हैं तो फेस कार्ड नू कढ दो नंबर कार्ड किन्ने रह गए तुहाडे कोले 40 रह गए। अच्छा हुण अगर मैं तुहानू पुछां कि मेरे कोले किंग किन्ने किंग है पूरे कार्ड डेक दे विच किन्ने किंग हुंदे ने तो तुहानू पता है कि डायमंड दा भी किंग है क्लब दा भी किंग है हार्ट दा भी किंग है ते स्पेड दा भी किंग है। तो किन्ने किंग होणगे? 4 किंग होणगे। अगर मैं तुहानू कहां रेड कलर दा किंग किन्ने है तो तुसी कहोगे सिर्फ 2। मैं तुहानू पुछांगी ब्लैक कलर दे किंग किन्ने है तो सिर्फ 2। ठीक। अच्छा अगर मैं तुहानू कहां कि मैनू की चाहिदा है मैनू एस चाहिदा मैं ए 52 कार्ड्स दे नू शफल करा कि मेरे कोले एक कार्ड जिहड़ा बाहर निकले वो एस निकले है ना। तो जिहड़ा ए है
एस है। हुण मैं कोई कलर स्पैसीफाई नहीं किया, तो एस तुहाडे कोले डायमंड का भी आ सकता, क्लब का भी आ सकता, हार्ट का भी आ सकता और तुहाडे कोले स्पेड का भी आ सकता। तो किन्ने हो गए एसिस टोटल 4। अच्छा हुण जे मैं कहां जिहड़ा एस है ना वो मेरे कोले रेड कलर का आवे, तो एस रेड कलर के 2 ने, देखो हैगे है ना 2। अगर अच्छा फिर मैं क्या जिहड़ा एस आवे ना वो सिर्फ ते सिर्फ हार्ट का आवे, तो किन्ने हैगे तुहाडे कोले 1। अच्छा जे मैं कहां मेरे कोले 10 आवे, ठीक है 10 आवे पर क्लब का आवे, तो क्लब वाले 10 किन्ने है, सिर्फ 1 है। तो यदी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 बाय टोटल कार्ड्स 52। समझते पे? तो तुसी कार्ड्स नू जरूर देखियो, नू समझियो, ते फिर तुहानू ए वाले सारे क्वेश्चंस करने की होणगे बहुत 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 ईजी होणगे, ठीक है। तो चलो हुण आपां जिहड़े क्वेश्चन साडे कोले पए ने 14th क्वेश्चन जिहड़ा है असीं उहनू वेखते हैं की कहंदा पिया तुहाडे कोले। तो जेकर मैं इनू इस तरह रखदा, ठीक है, तो तुहाडे कोले 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक चीज उन्हें दस दी तुहानू कि टोटल कार्ड्स किन्ने ने तुहाडे कोले, टोटल कार्ड्स ने तुहाडे कोले 52, ठीक है। अच्छा जी, उस तो बाद नेक्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन। तो टोटल कार्ड्स जे 52 है, इट मीन्स टोटल आउटकम्स भी तुहाडे कोले किन्नियां आ गईयां, टोटल आउटकम्स तुहाडे कोले आ गईयां 52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग चाहिए तुहाडे कोले, किंग केड़ा रेड कलर का। तो देखिया सी तुसी हुणे, है ना। चलो मैं फिर दिखा दिंदे हैं। तो 52 कार्ड्स दे विचों तुहाडे कोले 2 किंग ने जिहड़े रेड कलर दे ने, तो किन्ने टोटल 2 हो गए। हुण प्रोबेबिलिटी कि तुहाडे कोले किंग आवे ते केड़ा आवे रेड कलर दा आवे, उदी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2 बाय 52 विच इज इक्वल टू 1 बाय कितना, कैंसल कर दो इनू, 2 दूनी 4 26 1 बाय 26। सैकेंड देखो, सैकेंड दे विच कहंदा तुहाडे कोले फेस कार्ड्स, तो मैं तुहानू गणाए फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स केड़े केड़े हुंदे ने, जे क्यू के, है ना। तो 4 तुहाडे कोले अलग अलग कैटेगरीज है, हर एक दे विच 3-3 है, तो किन्ने हो गए फेस कार्ड टोटल। तो फेस कार्ड्स ने तुहाडे कोले इन टोटल फेस कार्ड्स दे आर 12, therefore probability that you will get a face card जो तुसी की कर रहे हैं उन्हें रैंडमली शफल कर रहे हैं कितना होगा 12 बाय 52, है ना। तो इनू भी काट लो, ए भी तुहाडे कोले गया 6, ये आ गया तुहाडे कोले 26, 6 बाय 26। फिर तुसी देखिए फिर जांदा, फिर आ गया तुहाडे कोले 3 और थल्ले आ गया तुहाडे कोले 13, तुहाडे कोले आ गया 3 बाय 13। उस तो बाद थर्ड देखो जी, थर्ड दे विच कहंदा पिया अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अच्छा रेड फेस कार्ड हुण देखने हैं। हुण जिहड़े रेड फेस कार्ड होणगे वो तुहाडे कोले किहड़े-किहड़े होणगे, वो तुहाडे कोले हार्ट दा भी हो सकदा, तुहाडे कोले डायमंड दा भी हो सकदा। मतलब जे मैं कहां हार्ट दे किन्ने होणगे जे क्यू के, और जिहड़ा डायमंड है डायमंड दे भी किहड़े होणगे जे क्यू के। टोटल किन्ने हो गए तुहाडे कोले 6 हो गए। तुसी लिखने नहीं है, तुहानू समझाउण वास्ते लिखिया, तुसी कार्ड्स दे विच चेक कर सकते हो। फिर प्रोबेबिलिटी की होगी तुहाडे कोले फेस कार्ड आवे, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर कितना होगा तुहाडे कोले, इहदी प्रोबेबिलिटी की होगी कितनी होगी 6 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स किन्ने 52, है ना। तो ये तुहाडे कोले आ गया 3 डिवाइडेड बाय 26, ते जिन्हों तुसी फर्दर डिवाइड करोगे 26 ते 3 26 से ना नहीं जाता, तो फाइनली तुहाडे कोले यही तुहाडा की आ गया, आंसर आ गया। उस तो बाद फोर्थ है जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट जिते हार्ट बनया रेड दा ओदा जैक, ठीक। तो ये तुसी आपे करना। आ स्पेड, स्पेड केड़ा हुंदा है, स्पेड कार्ड्स दे विचों स्पेड कौन सी, स्पेड सी ये है ना। तो तुहाडे कोले कहंदा कोई भी स्पेड आ जाए, तो जेकर तुसी टोटल स्पेड्स काउंट करोगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन जे क्यू के एंड ए, टोटल किन्ने स्पेड्स होणगे तुहाडे कोले, किन्ने होणगे 13। तो तुहाडे कोले किन्ना होगा 13 बाय 52। अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड दी तुहानू की चाहिए है, क्वीन चाहिए है, तो ठीक है डायमंड दी तुहानू क्वीन है, तो डायमंड दी क्वीन कितनी है तुहाडे कोले, एक क्वीन है डायमंड दी। तो आंसर कितना होगा, दी प्रोबेबिलिटी दा आंसर कितना होगा 1 बाय 52।
तो कार्ड्स वाले क्वेश्चन हुण गलत नहीं करने, ठीक है। वधिया तरीके दे नाल इहनूं समझो, ਜਿਹੜੀ वीडियो अच्छी लगती है उन्होंने देखो, कार्ड्स नूं देखो, खुद क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन गलत नहीं होंदे ना। 15th क्वेश्चन दे विच 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। मतलब तुहाडे कोले 52 कार्ड्स आ, उन्हां दे विचों तुसीं इन्हां नूं की कर लिया, अलग कर लिया। डायमंड दा 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस अलग कर लिया, ठीक है। और इन्हों की कर लिया तुसीं शफल कर लिया, इन्हों शफल कर लिया और शफल करके इन्हों दे फेसिस की रख दिते तुसीं डाउनवर्ड रख दिते, ठीक। कहंदा पिया 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, इन्हां चों मैं एक कार्ड पिक करा, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन। ओके, टोटल कार्ड्स किन्ने हैं तुहाडे कोले? हुण 52 नहीं लिख देना, गलत हो जाना नहीं तो क्वेश्चन। सिर्फ किन्ने कार्ड्स ने तुहाडे कोले? 5 कार्ड्स, उन्हें मेंशन भी कीता है 5 कार्ड्स, ठीक। अच्छा, हुण फर्दर की गल करदा पिया? फर्दर कहंदा पिया इहदे विच तुहाडे कोले 10 पिया, जे पिया, क्यू पिया, के पिया एंड ए पिया। अच्छा, क्वीन्स किन्नियां? हुण देखो क्वीन दियां, क्वीन किन्नियां तुहाडे कोले? एक है क्वीन, सो प्रोबेबिलिटी दैट क्वीन विल कम, मैं इहदे चों एक कार्ड चक्का रैंडमली तो वो क्वीन ही होवे, ठीक है। की होगी वो 1/5, ਉਹਦੀ प्रोबेबिलिटी की होगी 1/5। अच्छा, हुण की कहंदा पिया सैकेंड पार्ट दे विच, जिहड़ा सैकेंड पार्ट है कह रहा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। कहंदा सपोज कर लो जिहड़ा तुसीं एक कार्ड कढिया है ना, एक क्वीन ही है ते तुसीं उहनूं चुक के साइड ते कर दिता। अच्छा, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैकेंड कार्ड पिक्ड, हुण मैं चो की करा, एक होर कार्ड चक ला, मैं आस कार्ड चक लिया, ठीक है, ते ओ कार्ड की होवे मेरे कोले? एक एस होवे, की होवे? एस। अच्छा, हुण जदों मैं ये कार्ड पिक किया किन्ने कार्ड्स रह गए सी? 4, तो टोटल कार्ड्स किन्ने? हुण 5 नहीं लिखने, उन्होंने चुक के तुसीं साइड ते करता होया, टोटल कार्ड्स किन्ने हैं तुहाडे कोले? 4 है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एस? एस, एस मीनस ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हुण तुसीं चेक कीता सीगा स्टार्टिंग दे विच एस इक्को ही सी, तो 1 डिवाइडेड बाय किन्ना? टोटल कार्ड्स किन्ने? 4, ठीक है। तो इस तरीके दे नाल वाला क्वेश्चन होगा। 16th क्वेश्चन दे विच साडे कोले हैगा 12 डिफेक्टेड पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स। मतलब जिहड़े 132 गुड पेन्स ने, जिन्होंने मेरे को पेन्स है, ठीक है, इन्हां दे विच कुछ गुड पेन्स है, मतलब जिहड़े चलदे ने, ते कुछ पेन्स ने जिहड़े नहीं चलदे, डिफेक्टिव ने। तो मैं लिख ला गुड पेन्स। गुड पेन्स दा मतलब जिहड़े चलदे ने। गुड पेन्स किन्ने हैं तुहाडे कोले? 132। और डिफेक्टिव किन्ने हैं? डिफेक्टिव पेन्स ने तुहाडे कोले 12। तो टोटल पेन्स किन्ने हो गए? टोटल पेन्स हो गए तुहाडे कोले, इन्हां नूं ऐड कर लो, 144 पेन्स आ गए, ठीक। It is not possible to judge. Just look at the pen and tell whether or not the pen is defective. हुण आप मेरे को सारे पेन पे हुए हैं, बिल्कुल सेम है, मैं इन्हां नूं देख के नहीं दस सकदी किहड़ा खराब है किहड़ा चलदा है, ठीक है। तो कहंदा पिया 1 is taken out at random from the lot, इन्हां चों अचानक एक नूं मैं चक लवां ते what is the probability that the pen is a good pen? तो की होगा? good pen दी probability, good pen दी probable outcomes किन्ने? 132। So therefore probability that you will get a good pen कितना आ जाऊगा? probable outcomes 132 divided by 144, ठीक। तो जो तुसीं इहनूं कैंसल करोगे, इहनूं सॉल्व करोगे, तुहाडे कोले कितना आ जाऊगा? 11/12 आ जाऊगा, राइट। अच्छा, हुण इस तो बाद इहदा जिहड़ा एक 17th क्वेश्चन है बल्ब्स वाला है, वो भी एग्जैक्टली इदां दा ही है कि कुछ चंगे बल्ब्स दे नाल कुछ डिफेक्टिव बल्ब्स आ गए, तुसीं अपने आप करना।